اب میں ایسی شخصیت کو دعوت سخن دیتا ہوں جن کا بیان ایمان افروز، روح پرور، دل نشین، انقلاب آفرین، پرمغز جیسی خصوصیات کا حسین گلدستہ ہوا کرتا ہے۔ میری مراد فضیلت الشیخ حافظ عبدالسمیع کلیم اللہ المدنی حفظہ اللہ ہیں۔ شیخ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، خطابت کی گل فشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گل فشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ فضیلت الشیخ حافظ عبدالسمیع مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس طرح کا پروگرام یقینی طور پر موجودہ دور کی بڑی ضرورت ہے، اور علماء سے قربت پیدا کرنا جو کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی کریں، اس کی ماضی میں ضرورت تھی، لیکن آج یہ ضرورت دوبالا ہو جاتی ہے۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کا موقع دیا، آپ سے گفتگو کا اللہ رب العالمین یہ شرف دے رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی یہاں آمد کو اپنے لیے خالص کر لے، اور اس مجلس کو اللہ رب العالمین اسلامی مجلس بنائے۔ میرے بھائیوں، آپ نے 3 افاضل علماء کرام کی گفتگو کو سماعت کیا، اور ہماری اس مجلس میں عورتوں کی بھی اچھی تعداد ہے جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں، اس لیے میں اختصار کے ساتھ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے 2-3 باتیں عورتوں کے تعلق سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب لوگوں کو، میری بہنوں کو، اس سے فائدہ پہنچائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کے لباس کے سلسلے میں اسلام کی رہنمائی کیا ہے، اور یہ معاملہ صرف عورتوں کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ عورتوں سے پہلے ہم مرد حضرات کی ضرورت ہے کہ اپنے گھروں میں زندگی گزارنے والی بیٹیوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، ماؤں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں ہمارا اپنا نظریہ کیا ہو۔ ہم ان کے نگہبان ہیں تو ہماری نگہبانی کا تقاضا کیا ہے۔ ان دونوں امور کے پیش نظر ہمیں اسلامی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے کہ ایک اسلامی خاتون اپنے لباس میں یا اپنی زندگی گزارنے کے تمام مراحل میں اپنی مرضی کی وہ مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے اسے جو حکم دیا اس حکم کی وہ پابند ہے، اور اسی حکم کی تعمیل میں اس کی عزت، اس کی سربلندی اور اللہ رب العالمین سے اس کی قربت بھی ہے۔ اس لیے آئیے ذرا ہم لوگ سماعت کریں کہ اسلام نے عورتوں کے لباس کے سلسلے میں کیا تعلیمات پیش کی ہیں۔ پہلی بات تو اللہ رب العالمین نے نبی کی بیویوں کو اور عام مومنہ عورتوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبنات المؤمنین، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ جب بھی انہیں اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہو تو اپنی چادروں کو، برقعے کو، حجاب کو اپنے جسموں پر ڈال لیا کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی مسلم خاتون کے لیے جب گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ایسے لباس کا اہتمام کرے جس لباس کے ذریعے وہ اپنے عزت کی، اپنے آبرو کی، اپنے حشمت کی پوری طور پہ محافظت کر سکے۔ اور اس سلسلے میں اسلام نے جو قانون دیا ہے وہ قانون یہ ہے کہ عورت ایسا لباس زیب تن کر کے اپنے گھر سے باہر نکلے جو لباس اس کے پورے جسم کو ساتر ہو،
उसके पूरे जिस्म को ढांपने वाला हो। ऐसा लिबास जिस लिबास को पहनने के बाद या ओढ़ लेने के बाद औरत के जिस्म का हिस्सा मर्दों के लिए, अजनबी इंसानों के लिए आया ना हो। ये इस्लामी लिबास की पहली शर्त है कि औरत का लिबास उसके पूरे जिस्म को ढांपने वाला हो। अगर इस सिलसिले में दलील पेश की जाए तो बहुत सारी दलील सुनन अबू दाऊद में, सुनन तिरमिज़ी में, मुस्नद अहमद में और भी हदीस की किताबों में मौजूद हैं, जिनमें सहाबियात, नबी के ज़माने की औरतें अपने लिबास का एहतमाम करने में किस बात का ख्याल रखती थीं, वो बातें आज के दौर की औरतों को समझना चाहिए और उन पर गौर करना चाहिए। पहली बात तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें आपने ऐलान किया 3 किस्म के लोग हैं जिन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर लानत भेजी गई है। जरा आप गौर कीजिए, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर लानत भेजी गई। उन 3 किस्मों में एक वो किस्म जिनका ताल्लुक औरतों से है कि ऐसी औरत जिसके घर में उसके बाप ने या उसके शौहर या उसके भाई ने जरूरियात जिंदगी मुहैया कर रखा हो, लेकिन वह औरत बेपर्दा होकर अपने घर से बाहर निकलती हो, जाहिलियत की बेपर्दगी का मुजाहरा करती हो, तो ऐसी औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर लानत की मुस्तहिक ठहरती है। और इसी कबील की अगर बात आप करें तो अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की बेटी जिनका नाम हफ्सा है, हफ्सा अपनी फूफी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाती हैं। जरा आप गौर कीजिए, अभी ये बुलूगत में कदम नहीं रखती हैं। बालिग होने से पहले जैसे हमारे मुआशरे में फूफियों से मिलने के लिए भतीजियां जाती हैं, ऐसे ही हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान अपनी फूफी आयशा के घर जाती हैं। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब उन्होंने देखा कि मेरी भतीजी, उसके सर पर जो दुपट्टा है वो बड़ा बारीक है जिससे सर के बाल नजर आते हैं, तो फौरन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने भतीजे के दुपट्टे को लिया अपने हाथ में और उसे चाक कर दिया। और चाक करने के बाद दूसरा दबीज दुपट्टा जिससे सर के बाल ढक जाएं, वो दुपट्टा ओढ़ने के लिए दिया। इस कबील का वाकया आयशा सिद्दीका की जिंदगी में एक और पेश आया। उस वाकये में बात यूं मज़कूर है कि आयशा सिद्दीका के पास कुछ औरतें आईं औरतों के बाद मसाइल दरियाफ्त करने के लिए, जिनके सर पर बारीक दुपट्टे थे, जिनसे उनके बाल जाहिर थे। तो आयशा सिद्दीका ने क्या जवाब दिया? कहा ये लिबास उन औरतों का है जो औरतें सूरह नूर पर ईमान नहीं रखती। जरा आप गौर कीजिए, ये लिबास उन औरतों का है जो सूरह नूर पर ईमान नहीं रखती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर में औरतों के लिबास के सिलसिले में जो तफसील दी है, किसी और सूरत में वो तफसील नहीं है। तो आयशा के कहना कि ये लिबास उन औरतों का जो सूरत नूर पर ईमान नहीं रखती हैं, और अगर तुम सूरत नूर पर ईमान रखती हो तो तुम्हें चाहिए कि उस सूरत में बयान करदा लिबास का तुम एहतमाम करो। इन दोनों दलाइल से पता चला कि औरत का लिबास ऐसा होना चाहिए जो ढीला ढाला हो। ढीले ढाले लिबास का मतलब ये हुआ जिस लिबास के पहनने से औरतों के जिस्मानी साख्त का पता ना चले, क्योंकि लिबास अगर से मोटा हो लेकिन अगर वो चुस्त है जिससे औरतों के जिस्म की साख्त का पता चलता है, तो ऐसे लिबास को इस्लाम ने हराम करार दिया है। आप जरा इस्लामी लिबास के बारे में आगे मेरी बात को समाप्त कीजिए, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिबास के बारे में खुद औरत के सवाल के जवाब में कहा था। क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमैमा बिनते रुकैका ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई औरत जब अपने घर से बाहर निकलने का इरादा रखती हो तो अपने पैर को, बहरहाल मेरे भाई मैं आपसे कह रहा था कि औरत के लिबास के सिलसिले में इस्लाम का निजाम यह है कि जब भी औरत अपने घर से बाहर निकलने का इरादा करे तो ढीला ढाला लिबास पहनकर जाए। उमैमा बिनते रुकैका के सवाल के जवाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी कोई औरत अपने घर से बाहर निकलना चाहे तो उसे चाहिए कि अपने कपड़े को अपने पैर से नीचे एक बालिश लटका ले। जरा आप गौर कीजिए,
मर्दों के बारे में इस्लाम का हुक्म यह है कि टखने से ऊपर मर्दों का लिबास होना जरूरी है किसी भी हाल में, वो सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि एक मर्द का लिबास किसी भी हालत में अगर टखने को ढकने वाला है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद हमें सुनना चाहिए। आपने कहा है साफ तौर पे मा अस्फल मिनल काबैन फहुव फिन्नार, काबैन से नीचे, टखने से नीचे जो लिबास जाएगा वो यकीनी तौर पे जहन्नम में जलेगा। और भी बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन औरतों ने नबी से सवाल किया कि मर्दों के लिबास के सिलसिले में तो ये ज़ाब्ता है, लेकिन औरतें अपना लिबास अपने टखने से कितना नीचे लटकाएं? तो आपने कहा एक बालिश्त। उस दौर की औरतें कितनी अच्छी थीं, अल्लाह पर ईमान था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम था, इस्लामी हिजाब की पाबंदी करती थीं। उन्होंने सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदन तनकशिफु अक़दामुहुन्ना, तब तो उनके पैर जाहिर हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फयज़िदना अला ज़िराइन, फिर उन्हें चाहिए कि अपने पैर से कपड़े को एक हाथ के करीब लटकाएं, इससे ज्यादा ना करें। फिर सवाल करती सहाबिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जमीन पे हमारा कपड़ा रगड़ के चलेगा तो जमीन का नापाक हिस्सा हमारे कपड़े को नापाक कर देगा। लेकिन इस्लाम की समाहत पर, इस्लाम की आसानी पर गौर कीजिए कि इस्लाम कितना अजीम दीन है, इंसानी हुकूक की कितनी रियायत करता है। नबी ने कहा अलैसत बादहा अर्दुन ताहिरा, क्या उसके बाद पाक जमीन नहीं होगी? अभी हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोग्राम चल रहा है, अजान हो गई, क्या बेहतर होता कि प्रोग्राम जारी रहता और सभी लोग यहाँ अजान देते, जमात से नमाज पढ़ते तो बहुत अच्छी बात होती। लेकिन हमारे भाई ने कहा चूंकि ये कालीन ऐसा है जिसे लोग इस्तेमाल करते हैं और यहाँ नमाज पढ़ना शायद सही ना हो। ऐसे में इस्लाम का निज़ाम ये है कि ये कालीन अगरचे इस पर तमाम लोग चलते हैं, जूते पहन के चलते हैं, चप्पल पहन कर चलते हैं, गैर मुस्लिम भी चलते हैं, मुसलमान भी चलते हैं, लेकिन जब तक नापाकी यहाँ वाज़ेह तौर पे ना हो उस वक्त तक इसे पाक इस्लाम मानता है और यहाँ नमाज पढ़ना इस्लामी तालीमात की रूह से जायज है। एक जायज चीज मैंने आपके सामने पेश किया। मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता था कि हमारे मुस्लिम खवातीन की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने लिबास में इस्लामी तालीमात का भरपूर लिहाज रखें, ख्याल करें। इस्लामी खातून का एक लिबास की एक शर्त यह है कि औरत का लिबास किसी भी शक्ल में मर्दों के लिबास से मुशाबहत ना रखता हो, क्योंकि इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उनका मफाद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत पर लानत भेजी है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करे। यहाँ मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने का माना ये है कि मर्दों के लिबास में औरत मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करे, यानी मर्दों के लिए जो लिबास मुतारफ है ऐसा लिबास इस्लामी खातून अगर ज़ेब-ए-तन करने की कोशिश करती है तो गोया उसने मर्दों की मुशाबहत इख्तियार की जिसे इस्लाम ने हराम करार दिया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिलसिले में दूसरी हदीस है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो शख्स जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका शुमार उसी कौम से होगा। इनके अलावा और भी दलाइल हैं, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है इसलिए मैं आपके सामने इशारे में गुफ्तगू करना चाहता हूं। औरत के लिबास की एक और शर्त है, वो शर्त ये है कि मुस्लिम खवातीन का लिबास गैर मुस्लिमा औरतों के लिबास के मुशाबे ना हो। यानी हमारी सोसाइटी में गैर मुस्लिम औरत जिस लिबास के जरिए मुतारफ है, मारूफ है कि गैर मुस्लिम औरत का लिबास है, अगर मुसलमान खातून उस तरह का लिबास ज़ेब-ए-तन करती है तो उसे जानना चाहिए कि गैर मुस्लिमों का लिबास ज़ेब-ए-तन करने की वजह से उसने हराम का इर्तिकाब किया जिसे इस्लाम ने रोका है। औरत के लिबास या मर्द के लिबास के सिलसिले में एक मुश्तरक बात यह है कि मर्दोजन में से किसी का लिबास भी शोहरत का लिबास ना हो, नामोरी का लिबास ना हो। हमारा मुआशरा जो लिबास पहनता है उस तरह का लिबास पहनने की मर्दोजन कोशिश करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान को सख्त वईद सुनाई जो शोहरत का लिबास ज़ेब-ए-तन करता है। आपने फरमाया मन लबिसा लिबास शोहरती अलबसहुल्लाहु लिबास मज़ल्लतिन यौमल क़ियामा, जो शख्स भी दुनिया में शोहरत का लिबास पहनेगा क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को दिल्लत का लिबास पहनाएगा। तो ये तमाम की तमाम शुरूत इस्लाम में औरतों के लिबास के ताल्लुक से हैं। लिहाजा मेरी माँ और बहनों, मेरी बात को गौर
गौर से सुनिए और गौर से सुनते हुए अपने आप को इस्लामी लिबास में मलबूस करने की कोशिश कीजिए। ये मेरी गुफ्तगू का पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा मेरी गुफ्तगू का आज के दर्स में ये है कि औरतों के घर से बाहर निकलने के इस्लाम में ज़वाबित क्या हैं। ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने औरतों को घर में कैद कर दिया, जैसा कि मगरबी दुनिया और इस्लाम के दुश्मन लोग इस बात पेश करते प्रोपेगेंडा करते हैं कि इस्लाम ने औरत को हिजाब और बुर्के की पाबंदी के जरिए औरत पर एतमाद को खो दिया, उसे बंद कोठरी तारीख घर में बंद कर दिया। इस्लाम का निजाम ऐसा नहीं है कि इस्लाम जहां हिजाब का हुक्म देता है, पर्दे का हुक्म देता है, लिबास की पाबंदी का हुक्म देता है, तो औरतों को कैद नहीं करना चाहता, औरतों की आजादी को नहीं छीनना चाहता, औरतों के हुकूक को सल्ब नहीं करना चाहता, बल्कि इस्लाम ने औरतों के लिए खूबसूरत निजाम देते हुए ऐसे ज़वाबित की पाबंदी का औरत को हुक्म दिया जो ज़ाब्ता इस्लाम की औरत की इज्जत और उसकी हशमत का पूरा लिहाज रखता हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस बात का पूरा हक है कि अपनी बंदियों को जिस चीज का चाहे, जिस हुक्म का चाहे मुकल्लफ बनाए। आओ मैं आपको बताऊं, औरतों का घरों से निकलना बाज़ हालतों में वाजिब है और इस वजूब की ताकीद इस्लाम में यहां तक की गई कि वो औरतें जो नापाकी के अय्याम से हैं, जो निफास के अय्याम से हैं, जो यमसी के दिनों से गुजरती हैं, ऐसी तमाम औरतों को अपने घरों से निकलना इस्लाम में जरूरी ठहरा दिया गया। लेकिन वो मौका कहां है? क्या शॉपिंग सेंटरों में खरीदारी के लिए, या शादियों में अपने ज़र्क़ लिबास की जीनत के लिए, या वोटिंग की सब में खड़े होने के लिए, या कॉलेज में तालीम के लिए नहीं। इस्लाम ने औरतों को घरों से निकलने की जो जिम्मेदारी वाजिब करार दी है वो साल में 2 अय्याम है। बस साल में 2 अय्याम से मुराद ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी के लिए इस्लाम ने औरतों पर इस बात को फर्ज करार दिया कि हर खातून अपने घर से बाहर अपने अहले खाना के साथ, अपने शौहर के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ हिजाब की पाबंदी करते हुए ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाए, ताकि खुतबा समात करे, नमाज अदा करे, दुआ में शिरकत करे, तकबीर के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूकात को गवाह बनाए। आप जरा गौर करो, आज का मुसलमान जहां इस्लाम ने औरतों को घरों से निकलने का हुक्म दिया, वाजिब करार दिया, यहां तक कि बाद सहाबिया ने जो नबी से सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ख्याल क्या है ऐसी खातून के बारे में जिसके पास कुशादा चादर ना हो, जिसे ओढ़कर वो ईदगाह जाए, तो आपने जवाब दिया लितुलबिसहा उख्तुहा फी जिल्बाबिहा, उसकी बहन को चाहिए कि अपनी चादर में अपनी बहन को साथ लेकर जाए। इस कदर सख्त ताकीद कि नबी से दूसरा सवाल हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन औरतों के बारे में आपका हुक्म क्या है जिन पर नमाज फर्द नहीं है, नमाज जिनकी माफ है, यानी वो हैज के दिनों से हैं, निफास के दिनों से हैं, नापाकी के अय्याम से हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन्हें भी घरों से बाहर लेकर जाओ, वो औरतों की सफ के पीछे बैठकर इमाम का खुतबा सुनेंगी, दुआ में शिरकत करेंगी, तकबीर के कलिमात को बुलंद करेंगी, ये तमाम की तमाम फजीलत औरत हासिल करेगी, लेकिन नमाज चूंकि उसकी मुआफ है लिहाजा वो नमाज नहीं पढ़ेगी। तो इस्लाम ने गोया साल में 2 मरतबा औरतों को घर से निकलने का हुक्म दिया, जैसा कि सहाबिया ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को नकल किया सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक कि अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया कि हम लोग कुंवारी बच्चियों को जो आम तौर पे घरों से बाहर नहीं निकला करती, पर्दा नशीन खवातीन को जो घर के अंदर जिंदगी बसर करती हैं, ऐसी तमाम खवातीन को घरों से बाहर निकालकर ईदगाह ले जाएं, ताकि वो नमाज ईद अगर पढ़ने पर कादिर है तो नमाज ईद पढ़ें, खुतबा सुने, लेकिन अगर नमाज उनकी मुआफ है तो कम से कम मुसलमानों की इज्तिमाइयत का सबूत दें। आप जरा गौर करो, इस्लाम ने जहां मर्दोजन की इज्तिमाइयत का सबूत देने का हुक्म दिया ईद और बकरीद के मौके पर, वहां हम लोग अपनी औरतों को घरों में बिठा देते हैं। हैरत की बात यह है हमारी इस्लामी खवातीन पर कि वो गौर नहीं करती कि वो मर्दों की खिदमत को अंजाम दें, घर के उमूर को संभालें, पकवान पकाएं, बच्चों को तैयार करें, मर्दों का कपड़ा साफ करें, लेकिन जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए, जिक्र के लिए मुकद्दस जगह में जाने का हुक्म दिया गया, वहां मनहूस बनकर
अपने घरों में बैठी रहें। ये कितने शर्म की बात है। इसलिए मेरी बहनों, जरा आप गौर करो मेरी बात पर। इस्लाम जहां आपको घर से निकलने का हुक्म देता है, वहां आप पर फर्ज है कि आप अपने घर से बाहर निकल कर जाएं, ताकि इस्लाम में इज्तिमाइयत का सबूत दें। बहरहाल आज की खवातीन अगर गौर करें अपने शहर पर, तो हैरत होगी आपको कि जहां इस्लाम औरतों के जाने पर पाबंदी आयद करता है, यानी मज़ारात पर किसी कब्र की ज़ियारत के लिए जहां औरतों के जाने पर पाबंदी है, हमने अपने औरतों को खुली छूट दे रखी है कि वहां औरतें शौक से जाती हैं, नजर नियाज करती हैं, चढ़ावे चढ़ाती हैं और न जाने क्या क्या हराम अमल अंजाम देती हैं। वहां हमारी गैरत बेदार नहीं होती। लेकिन जहां इस्लाम पर्दे के साथ हुक्म देता है, वहां जाने के सिलसिले हम लोग कहते हैं कि फितना है। आप जरा मुकारना कीजिए, गौर कीजिए। औरत मज़ारों पे जाए फितना नजर नहीं आता, बाजारों में जाए फितना नजर नहीं आता, बच्चियां तालीम के लिए 5-6 घंटे कॉलेज में गुजारे, फितना नजर नहीं आता, शादियों में औरतें शिरकत करें, फितना नजर नहीं आता। लेकिन साल में 2 मकाम पर जहां औरतों का घर से निकलना वाजिब करा दिया गया हो, वहां हमारी खवातीन घर में बैठी रहती हैं। तो घर से निकलने का ज़ाब्ता पहला यह कि घर से उसका बाहर निकलना वाजिब है, और दूसरा ज़ाब्ता यह है कि औरत का घर से निकलना और घर में रहना दोनों शक्लें उसके हक में बराबर हैं। यानी जुमा की नमाज की अदायगी के लिए अगर औरत के लिए मस्जिद में नज़्म है कि वो जाकर जुमा की नमाज अदा कर सके, तो उसे हक है कि वो जुमा की नमाज के लिए और 5 वक्ता नमाज के लिए भी मस्जिद जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर को आबाद करे, अपने ईमान का सबूत पेश करे। इसके बहुत सारे दलाइल हैं जिसको बयान करने के यहाँ वक्त नहीं। तीसरी बात यह है कि औरत का 5 वक्ता नमाज उसके घर में पढ़ना अफजल है। हाँ, मस्जिद में जाना उसके लिए जायज है। उसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें एक सहाबिया ने आपसे सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये बात पसंद करती हूँ कि आपके साथ आपकी इक्तिदा में आपकी मस्जिद में नमाज अदा करूँ। तो हमारे नबी ने क्या जवाब दिया? हमारे नबी का, मुझे मालूम है तुम मेरे साथ मेरी मस्जिद में मेरी इक्तिदा में नमाज अदा करने की तमन्ना रखती हो, लेकिन याद रखो तुम्हारे घर का अंदरूनी हिस्सा तुम्हारे आंगन में नमाज पढ़ने से ज्यादा महबूब है, और तुम्हारा अपने घर के आंगन में नमाज पढ़ना तुम्हारे पड़ोस की मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और तुम्हारा अपने पड़ोस की मस्जिद नमाज पढ़ना मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। तो 5 वक्ता नमाज के लिए इस्लाम ने ज़ाब्ता दिया। लेकिन अगर औरतों के घर से बाहर निकलने की बात की जाए उसकी जरूरत के तहत, तो इस्लाम औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाजत देता है जब उसकी जरूरत हो, जब उस जरूरत की तकमील के लिए घर में दूसरा फर्द ना हो। और नबी के जमाने में खुद सहाबियात, आपकी बेटियां और सहाबे किराम की बीवियां अपने घरों से बाहर निकलकर अपने बाग में, अपने खेत में काम करने के लिए जाया करती थी। बुखारी और मुस्लिम के हदीस के मुताबिक अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा, जो जुबैर की बीवी हैं, ये खुद अपने घर से काफी दूर खजूर के बाग में काम करने के लिए जाती थी और अपने सर पर खजूर के बीज को लाद कर उठाकर लाती थी, अपने चौपाए को ऊंट को चारा देती थी। और एक दफा बुखारी की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से आ रहे थे सहाबे किराम के साथ, अस्मा को आपने देखा कि अपने सर पर खजूर के बीज लाद कर लेके आ रही हैं। नबी ने सवारी को रोका, सवारी को बिठाया, और अस्मा कहती हैं मैंने महसूस किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी को इसलिए रोका कि मुझे सवारी पर सवार करके मेरे घर तक पहुंचा दें। लेकिन मुझे हया आई, मैंने जुबैर की गैरत को याद किया कि मैं जुबैर की गैरत को देखते हुए नबी के सवारी पर बैठना मैंने पसंद नहीं किया। इस वाक़े से मैं बताना ये चाहता हूं कि औरतों को इस्लाम ने घर से निकलने की इजाजत दी है, लेकिन उस इजाजत की कुछ शुरूत हैं। मैं इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ उसको बयान करने पर इक्तिफा करूंगा। बहरहाल दूसरी एक हदीस जो सुनन अबू दाऊद में है, उस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया, इन्नहु कद उज़िना लकुन्ना अन तखरुजना लिहवाइजिकुन्ना, तुम्हें इस बात की इजाजत दे दी गई है कि तुम अपनी जरूरतों के लिए अपने घरों से बाहर निकलो। तो गोया औरतों को घरों
گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، میری اس بات کو ذرا غور سے آپ سنیے گا، اور معاشرے میں اس عورت کے بارے میں جو تصور ہے کہ جس کا شوہر مر جائے وہ اپنے گھر کے تاریک کوٹری میں رہے، سورج کی روشنی نہ پڑے، گھر میں کسی گھر سے باہر نہ نکلے، اس سلسلے میں آپ غور کیجئے، بخاری کی حدیث میں ہے کہ جابر کہتے میری خالہ کا طلاق ہو گیا، میری خالہ کا طلاق ہوا تو عدت کے ایام میں وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر کھجور کے پھل کو توڑنے کے لیے گئیں۔ ایک صحابی نے راستے میں دیکھا، خالہ کو منع کیا تو میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور نبی سے معاملے کو دریافت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا جدی نخلقی آسان تصدقی او تفعالی معروفہ، یقینی طور پہ تم گھر سے باہر نکل کر جاؤ، کھجور کے پھل کو توڑو، شاید تم کوئی نیکی کر سکو یا صدقہ کر سکو۔ تو یہاں پر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ طلاق یافتہ عورت اپنی عدت کے ایام میں اپنے باغ میں جا کر کھجور کے پھل کو توڑ سکتی ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو پامال نہیں کیا، گھر سے باہر نکلنے پر پابندی نہیں عائد کی، بلکہ گھر سے نکلنا کبھی فرض قرار دیا، کبھی مستحب گردانا، کبھی جائز قرار دیا، لیکن ہر صورت میں اسلام کا ضابطہ عورت کے گھر سے باہر نکلنے کے سلسلے میں کیا ہے اس کو آپ غور سے سماعت کیجئے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ میری بات پہ غور کیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے جب بھی کوئی عورت اپنے گھر سے اسلامی ضرورت کے مطابق یا اپنی ضرورت کے مطابق گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرے تو اسلامی حجاب کا خیال رکھتے ہوئے اور اسلامی حجاب کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے فرض ہے کہ خوشبو لگا کر اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، میک اپ کر کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان احادیث پہ آپ غور کیجئے۔ مسجد دنیا کی مقدس ترین جگہ ہے، جہاں انسان کے دل میں برائی کا شائبہ کمزور پڑ جاتا ہے، وہاں اللہ رب العالمین سے انسان قریب ہوتا ہے۔ ایسی جگہ جو اللہ کا گھر ہے وہاں عورت کو جانے کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن وہ اجازت مشروط اس بات سے ہے کہ عورت خوشبو لگا کر اپنی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جا سکتی، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں ایما امرات اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرہ، جو عورت بھی خوشبو استعمال کر چکی ہو تو ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں نہ آئے۔ ذرا آپ غور کیجئے، جب نماز کے لیے خوشبو میں معطر ہو کر عورت گھر سے باہر نہیں جائے گی تو پھر بازاروں میں، شاپنگ سینٹروں میں، شادیوں میں، دیگر اور جگہوں میں عورت کا خوشبو یا میک اپ کر کے جانا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ آپ اس پر غور کیجئے۔ دوسری حدیث اسی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں سخت وعید سنائی ہے، اس میں آپ نے کہا ایما امرات استعطرت ومرت برجال لیجدوا ریحها فہی زانیہ، جو عورت بھی خوشبو میں معطر ہو جائے اور خوشبو میں معطر ہونے کے بعد اپنے گھر سے باہر نکل کر جائے اجنبی مردوں سے جس کا گزر ہو تو ایسی عورت گویا زنا کی دعوت دینے والی ہے۔ ان دونوں احادیث کے ساتھ ساتھ اگر آپ تیسری حدیث پر غور کر لیں جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ مذکور ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ مسجد سے واپس آ رہے تھے اور ایک باندی مسجد میں جا رہی تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو ابو ہریرہ نے کہا این تریدین، تمہارا ارادہ کہاں کا ہے؟ وہ کہتی میں مسجد جانا چاہتی ہوں۔ تو پھر کہتے ہیں اذالک تطیرتے، کیا تو نے مسجد جانے کے لیے خوشبو استعمال کر رکھا ہے؟ میں نے اپنے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو عورت بھی خوشبو استعمال کر کے مسجد کا ارادہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا حتی ترجع الی البیت، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس جائے اور اپنے گھر واپس جانے کے بعد غسل جنابت کر لے، یعنی ایسے طریقے پر غسل کر لے جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے تاکہ اپنے جسم سے خوشبو کو زائل کر لے، پھر وہ مسجد جائے۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، اپنے گھر سے نکلنا آپ کے لیے جائز ہے، لیکن یہ جائز نہیں کہ اگر آپ کا گزر اجنبی مردوں سے ہونے والا ہو تو آپ میک اپ کر کے جائیں، خوشبو لگا کر جائیں۔ اسلام نے اس کو جائز نہیں قرار دیا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے 3 حدیثیں پیش کی ہیں جن سے آپ معاملے کی نزاکت کو بخوبی سمجھ سکتے ہو۔ اسلام نے گھر سے نکلنے کا دوسرا ضابطہ یہ دیا کہ عورتیں جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اسلامی حجاب کی پابندی کے ساتھ ساتھ خوشبو سے اجتناب کرتے ہوئے راستوں
रास्तों के बीच से चलने की कोशिश न करें, रास्तों के बीच में खड़ी होकर गुफ्तगू ना करें, बल्कि औरतों को इस्लाम ने निजाम दिया कि रास्ते के करीब से, रास्ते के किनारे से चलें, बीच में खड़ी होकर गुफ्तगू ना करें, मर्दों की गुजरगाह का ख्याल करें। इस सिलसिले में सुनन अबू दाऊद की एक हदीस में आपके सामने पेश करूंगा, जिससे आप अच्छी तरह मेरी बात को समझ जाएंगे। वो मामला ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें मस्जिद में आकर के बाकायदा जमात से नमाज पढ़ती थी, और तरीका यह था कि पहले औरतें मस्जिदों से बाहर निकल जाया करती थी, फिर मर्द हजरात निकलते थे। ये ज़ाब्ता था इस्लाम में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए हैं, औरतें मस्जिद से बाहर निकलकर रास्ते में तेज आवाज में गुफ्तगू करने लगी। नबी तक जब गुफ्तगू पहुंची तो आप जल्दी से गए औरतों की जमात की जानिब, और आपने औरतों की जमात को खिताब करते हुए कहा था, या माशरन निसा लैसा लकुन्ना अन तहक़्क़ुक़्ना तरीक़ अलैकुन्ना बिहाफ़ातित तुरुक़। औरतों की जमात, रास्तों के बीच में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम रास्तों के किनारे को लाजिम पकड़ो। सहाबिया कहती हैं, उम्मे आतिया, कि नबी के फरमान को सुनने के बाद ये ईमान होता किसी इंसान की जिंदगी में। सहाबिया कहती हैं, नबी के फरमान को सुनने के बाद जब हम घर से निकलना चाहती थी, घर से निकलने का इरादा होता, तो हम रास्तों के किनारे से चलती थी, यहां तक कि हमारी चादरें दीवार में जो नशेबो फराज होते थे, नोकीले चीजें होती थी, उनसे कभी कभी उलझ जाया करती थी। यह तरीका था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मर्दोजन का। औरत अगर अपने घर से बाहर निकलने का इरादा रख निकल गई हो तो उसके लिए इस्लाम ने शर्त करार दिया, अगर लंबी मसाफत है, दूर की मसाफत है, तो किसी औरत के लिए उस मसाफत को तय करना जायज नहीं जब तक उसके साथ उसका महरिम ना हो। जरा आप गौर कीजिए। इस सिलसिले में मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने दो हदीस पेश करने पे इक्तिफा करूंगा। पहली हदीस में सहाबी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गज़वे में अपना नाम लिखा लिया, मैंने गज़वे में अपना नाम दर्ज करा लिया है, और मेरी बीवी या मेरी माँ हज का या उम्रे का इरादा करती है, उसके साथ कोई नहीं है। तो आपने कहा, तुम जाओ अपनी माँ के साथ हज करो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे में जाने का उन्हें हुक्म नहीं दिया, बल्कि अपने माँ के साथ हज करने जाने का हुक्म दिया। इससे पता चला कि अगर औरत के लिए हज का सफर या उम्रे का सफर बगैर महरम के जायज नहीं, तो फिर बिजनेस के नाम पर, नौकरी के नाम पर, तिजारत के नाम पर, तालीम के नाम पर, इस नाम पर कि हमारे घर वाले बिजनेस करते हैं और किसी पड़ोसी के साथ उसका सफर करके जाना, ये तमाम की तमाम चीजें कहां तक जायज हो सकती हैं, और फिर उनके नतीजे में क्या फसाद लाजिम आया, उस पर आप गौर कीजिए। दूसरी हदीस जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया, ला यखलुवन्ना रजुलुन मा इमरातिन इल्ला माअहुम शैतान। जब भी कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ खलवत में होता है तो उन दोनों के साथ शैतान होता है। और भी इस कबील की बहुत सारी अहादीस हैं। तो पता है चला कि औरत जब अपने घर से बाहर निकलने का इरादा करती हो तो लंबे सफर के लिए अपने किसी महरिम के साथ, बाप हो, उसका बेटा हो, उसका भाई हो, उसका चचा हो, और उसके मामू हो जिनसे उसका निकाह हराम है, ऐसे लोगों के साथ वो जाने का इरादा करे। और अगर मामूली मुसाफत है तो नौजवान बच्चियों को चाहिए फितने के डर से कि अपने घर की उम्र दराज औरतों के साथ जाएं, 2-3 औरतें कम से कम साथ जाएं, ताकि फितने के रास्ते उनके लिए मजदूद हैं। तो मेरे भाइयों, औरत के घर से निकलने का ज़ाब्ता यह है कि महरिम के बगैर लंबा सफर औरत ना करे, और मामूली सफर एहतियातन अपने घर की बड़ी उम्र की औरतों के साथ करने की कोशिश की जाए। इसी के साथ औरत को इस्लाम ने ज़ाब्ता दिया, जब अपने घर से बाहर निकलने का इरादा करे तो अपनी निगाह को पस्त रखे, और मर्दोजन को निगाह पस्त रखने का हुक्म देते हुए इस्लाम ने जो हुक्म दिया, अली बिन अबी तालिब खिताब करते हुए, ला तुतबि नज़रत नज़रा, निगाह को एक के बाद दीगरे, एक निगाह के बाद दूसरी निगाह मत डालो। यानी अगर किसी अजनबी औरत पर किसी मर्द की अचानक निगाह पड़ जाए, या किसी औरत की किसी अजनबी मर्द पर निगाह पड़ जाए अचानक, तो जरूरी है कि फौरन निगाह को फेर लिया जाए। निगाह को जमाए रखना, दोबारा निगाह डालना, यह गुनाह का काम है, और निगाह ही पहला तीर है जहां शैतान अपने फंदे डालता है। इसलिए निगाहों को पस रखना और अजनबी मर्दों से फेर लेना इस्लाम ने उसको फर्द करार दिया है। मेरे भाइयों, मुसलमान औरत के बारे में अली बिन अबी तालिब का जो कौल है मुसलमान औरत की गैरत के बारे में, उस कौल पे आज की औरतों को गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा
बलगनी अन्न निसाकुम युखालितन रिजाल, मुझे ये बात मालूम हुई है कि तुम्हारी औरतें युखालितन अलूज, अजनबी गैर मुस्लिम मर्दों से होकर गुजरती हैं। अला तगारून, क्या तुम्हें गैरत नहीं आती? और ऐसे इंसान की जिंदगी में कोई खैर नहीं जिसकी जिंदगी में गैरत ना पाई जाती हो। तो मालूम ये हुआ कि हमारे दौर की बच्चियां और औरतें खास तौर पे बाजारों में जाने से गुरेज करें। अगर बाजारों में जाने के सबब अजनबी गैर मुस्लिम मर्दों से उनका कसरत से गुजर हो या इख्तिलात की सूरत पैदा हो, ऐसे में ईमानी गैरत का तकादा यह है कि हमारी खवातीन अपने घरों से निकलने की कोशिश न करें। बहरहाल बातें इस कबील की बहुत ज्यादा है और मुमकिन नहीं कि एक मजलिस में सारी बातों को आपके सामने जिक्र किया जाए, खुसूसन चूंकि आज का प्रोग्राम शायद वक्त इसमें मुक़य्यद है और हम लोगों को यहाँ से वापस जाकर अभी कल ड्यूटी भी करनी है, इसलिए मैं माजरत के साथ इन्हीं कलमात पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इन बेहतरीन बातों के मुताबिक अमल की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम फ़स्तग़फ़िरूह।